Please rise for the national anthem. On behalf of IIM Jammu, preside over the function and formally announce श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सर्वप्रथम तो आपका आभार। अपने व्यस्तम चर्या से आपने कुछ समय निकाला, हमारे बीच रहे, इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई है और इन छात्रों की हौसला अफजाई भी हुई है। हम जानते हैं गत कुछ दिनों से आप उड़ीसा में भी व्यस्त थे, उसके बावजूद अब यहाँ पधारे और यहाँ से शायद आपकी जानकारी में ना हो कि सीधा आपको वापस भुवनेश्वर लौटना है। ये इस बात का भी संकेत है कि किस प्रकार से आपने इन संस्थाओं के प्रति और इन छात्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, जिनका वक्तव्य अभी आप सुन रहे थे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर मिलिंद, डायरेक्टर प्रोफेसर सहाय, seated before me the vice chancellors of different universities, the Central University, the University of Jammu, senior members of the faculty, and dear students and the passing out graduates to whom actually this program is dedicated. It is you there, that is why we are there. We are there because you happen to be there. And my first thought on seeing you is that you are very special. You are special, and I would not say that just for the sake of saying, being a student of science, we've been taught to speak not without evidence. You are special because you are the graduates, the postgraduates of the Modi era. And you are youth of India at a time when it is one of the best times happening for youth in India. And you are also special for another reason, that with the age being very much on your side, the energy on your side, you are going to be the celebrators of Century India in 2047. I don't know how many of us would be there around, even if we are, how much can we celebrate? But yes, you have been blessed with that privilege by the Almighty. Now this is both a challenge as well as an opportunity, and depends on you how you would discharge it. And why I say you are privileged, you are also privileged to be the youth and the graduates of this era, because sitting before the Honorable Education Minister of India, you are among the earliest beneficiaries of the new policy, the National Education Policy 2020 or the NEP 2020. I sometimes wonder why it shouldn't have happened about 40 years ago. And I sometimes regret also. The other day in a podcast interview with the ANI proprietor, Ms. Samita Prakash, the last question she asked me, any regret, any wish? I said, I can't regret because God would be angry. But yes, I wish I was a youth in 2023. And there's a reason for that, because I belong to a generation of youth where we became prisoners of our aspiration. If, for example, my parents thought I had to be a doctor, I would go in for medical subjects in class 12. If I could make it, well and good. If I did, I had no choice but to do a BSc, either in botany or zoology. Then I would try my hand in civil services, provincial service. If I didn't make it, then I would go in for post-graduation, again in the same subjects. Then if not, then go in for PhD.
finally end up as an educated unemployed. So the old education policy has ironically given rise to a huge lot of educated unemployed in this country, because we had somewhere misguidedly linked degree with education and also with the growth in life. The other day, the Cambridge Vice Chancellor was telling me, Doc, I must compliment you. If I don't have students from India, my PhD would close down. So when he went out, I told my colleague, I said, was it a compliment or otherwise? He said, what do you mean? I said, the grand old man doesn't know that in his country, a boy or a girl would go in for a PhD only if he or she has decided to dedicate the rest of his life or her life to that subject. Here I go in for a trophy. I can obtain a degree in biotechnology and become an MD in a computer company. So I'm glad, under the inspiration of Prime Minister Modi, led by Shri Dharmendra Pradhan ji, we have a new education policy which will hopefully make up for several anomalies of the past. You are also lucky because you are initiating your profession at a time when India is leading the movement of startups in the world. And again, we owe it to Prime Minister Modi from the ramparts of Red Fort in 2015 when he said, stand up India, start up India. I remember I received a number of phone calls asking me, what does this mean? We were so ignorant, so oblivious of this concept. We just had about 350. Today, we have got 800 times, 300 times more. We are now more than 1 lakh. And close to 150 unicorns, that is $1 billion turnover. And we have some of the brilliant boys and girls coming from middle class, some of them first timers, first generation. We had just about 50 biotech startups in 2014. Today we have close to 6,000. We had no concept about agri startups, and I'm glad this place itself has become the birthplace of the purple revolution of India, which is attracting agri startups from all over the country. I wish it is talked about more, but nevertheless, it is talked about more outside Jammu and Kashmir than in Jammu and Kashmir. But nevertheless, Bhadrawa and Gulmarg have come to appear in the world map. Somebody may sometimes ask, what has MBA got to do with all this? And that is because sometimes the question arises because we have somehow tied up this startup with S&T or IT. And that's because the concept came from West and landed straight in Bangalore, which was a hub of IT. मैं आप सभी को आज की शुभ अवसर पे, इस अवसर भरी दुनिया में आप एक नया कैरियर पाथवे में प्रवेश कर रहे हो, इसके लिए बधाई देता हूं। आपकी जिंदगी की यहाँ तक प्रवास में आपकी माता पिता जिन्होंने यहाँ उपस्थित हैं, सबसे ज्यादा खुशी उनकी मन में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा चिंता भी आ रहा होगा, आगे आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछोगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। आप अच्छे संस्कार से आए हो। मित्रों, आप ऐसे एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हो और ऐसे ऐसे देश में प्रवेश कर रहे हो। ये पूरा परिस्थिति में आप एक सिंगल यूनिट नहीं हो। जैसे आपके पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, आप जिस इंस्टीट्यूशन में, जिन इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ के आए हो, आपके स्कूल से लेके आए जम्मू तक, ये सभी आपकी ग्रेटर फैमिली की हिस्सा है। आपकी प्रांत, आपकी ये अडॉप्टेड प्रांत, या हमारी पूरा देश, या आज की दिनों में पूरा मनुष्य की सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति आप उत्तरदायी हो। और जब भारत में हो, भारत दुनिया की सबसे मजबूत, पुरानी और बड़ी गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा होना अपने आप में एक सौभाग्य है। अब दुनिया को अगर आप तुलना करते हो, उस तुलना में भारत में आप जन्मे हो, आप सौभाग्यशाली हो। जहां की अर्थनीति, जहां की कल्चरल रूटीन्स, सिविलाइजेशनल रूटीन्स, नॉलेज रिपोजिटरी और एक दृष्टि दुनिया को देखने के, एक मॉडर्न आउटलुक भारत में सदैव रहा। ऐसे एक
बैकग्राउंड में आप IIM जम्मू जैसे नया ही सही, प्रोफेसर शाह को मैं पूछ रहा था, ये 6th कन्वोकेशन है, एक यंग इंस्टीट्यूट में सौभाग्यशाली हूं। पिछले 2 सालों में मैं भारत की कई इंस्टीट्यूशंस में जाने का, लेकिन मैं निस्संदेह आपको बधाई देता हूं। आप नए सही लेकिन एक बहुत ही उच्च स्तर की इंस्टीट्यूशंस की अलुमने हो गए हो, आपको बधाई। आपने अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई किया। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि आज से आपकी कैरियर की नया पाथवे शुरू होगा। जिम्मेवारी का भूमिका आपका बढ़ जाएगी। जिम्मेवारी, जैसे मैंने कहा, मनुष्य सभ्यता के लिए, क्योंकि विश्व एक गांव बन चुका है। जिम्मेवारी आपकी देश के लिए, जिम्मेवारी आपकी परिवार के लिए, खुद के लिए। इस जिम्मेवारी की रास्ते में हमें सब समय में एक अवलोकन करते रहना चाहिए कि हम तैयार हैं। आर यू रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है आप उस रास्ते पे सफल होंगे। थोड़ा जो आज 225 नए विद्यार्थी, वास्तविक आपको तो मार्च महीने में आपकी एग्जामिनेशन हो गया, जैसे आपको कहा गया, ऐसे वर्णन किया गया। आपकी सहाय जी अच्छे लीडर होने के नाते, अच्छे इंस्टीट्यूशन बिल्डर होने के नाते, और कामले जी जिनके साथ हैं, इन दिनों में एजुकेटेड लोग एक पैरामीटर लेके घूमते हैं अपने जेब में कि मेरे एल्यूमिनी इतने हाईएस्ट पेड कैंपस उनकी हुई है। ये मेरे को थोड़ा कम प्रभावित करता है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक विषय कहा आप सभी को कि हमें अब तक पढ़ाई करवाना था अच्छे नौकरी के लिए, अच्छे जिंदगी के लिए। पिछले 2 दिन से एक डिबेट नेशनल मीडिया चला रही है कि हमारी देश में अच्छे संस्थानों में पढ़े हुए स्टूडेंट्स, IIT हो, IIM हो, ये लोग अपने कैरियर की परसुएशन से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, और आज की इंटरनेट की जमाने में, टेक्नोलॉजी की जमाने में कहीं भी बैठो काम तो हो सकता है, लेकिन किस इकोनॉमी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये चुनौती है। इसलिए आज रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पहले होनी चाहिए कि आप जॉब सीकर बनोगे। शाह जी ने एक शब्द लगाया जॉब क्रिएटर, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लगाया, लेकिन मैं उसके आगे थोड़ा आपको ले जाता हूं। यू मस्ट ऑल टू एस्पायर टू बी ए वेल्थ क्रिएटर। कोई भी समाज तब सुरक्षित होगा अगर समाज में वेल्थ रहेगा। वेल्थ क्रिएट होता है, जनरेट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है उस समाज की जो विद्वान लोग होते हैं, जिनके पास एक एंटरप्रेन्योर क्वालिटी और इंटेलेक्ट दोनों की एक ब्लेंड होती है, जो अमूमन हमारी धारणा है IIM जैसे स्टूडेंट्स ही उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। अभी आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर नहीं बनना है, आपको वेल्थ क्रिएटर बनना है, आपको संपन्नता इस देश के लिए लाना है। अभी तो दुनिया एक वर्क स्पेस बन गया, वर्क प्लेस बन गया है। आप कोई भारत की सुबह 6 बजे कोई उठेगा तो जापान की 9 बजे वाला ऑफिस में जा सकता है। भारत की दोपहर तक यानी 10-11 बजे तक आप UAE जैसे देशों की मॉर्निंग ऑफिस फास्ट अटेम्प्ट ऑन द ऑफिस कर सकते हो। फिर अब दोपहर हो जाएगा तो यूरोप की सुबह वाला ऑफिस में जा सकते हो। अब शाम हो जाएगा तो आप अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की मॉर्निंग आवर्स में उनके साथ बातचीत कर सकते हो। यह संभव, यह पहले कल्पना नहीं किया जा सकता था, अब यह संभव है। इसकी अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे लेना है हाथ में, यह हम सभी के दायित्व बनती है, यह हम सबके सामने चुनौती भी है। मित्रों, विशेष करके
टायर 2, टायर 3 शहर में जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे हैं हमारी सरकार के दौरान, और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहते हैं टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं रहता है, बड़े शहरों में पले बढ़ने से नहीं रहता है, या बड़े शहरों में पढ़ने से नहीं होता है। जम्मू IIM ने उसको सिद्ध किया है। आप बधाई के पात्र इसलिए। अभी तो संजोग है, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो रहा है। ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना केवल हमारी व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाने वाला है, ना केवल हमारी कैरियर को और सिक्योर करेगा, ये एक दार्शनिक तत्व, इट्स ए फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट जो विश्व की चुनौतियां हैं। मैं अगर आगे कुछ समय में मैं कोई आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन आप कंफर्ट जोन में ना जाओ। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि पैकेज हो जाता है, एक सैचुरेशन आ जाती है मन में, हो गया भाई कितना पढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उससे उत्पन्न इनोवेशन, ये हमें वो कंफर्ट जोन में नहीं रखने वाला है आने वाले दिनों में। इंडस्ट्रियल में पुरानी बात को नहीं जाता हूं। अगर मैं इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति 1 से 4 तक के एक इतिहास समीक्षा करता हूं, उससे सबसे बड़ी उपलब्धि आया है, जो रियलिटी आया है, समय कम लगती है। एक इनोवेशन होती है, उस इनोवेशन एक कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, और वो आने वाले दिनों में, उस समय में मार्केट में रहती है कम से कम 50 साल। यहां बहुत बैठे होंगे जो बाजाज स्कूटर या वेस्पा स्कूटर नहीं दिखे होंगे, वो होंडा, हीरो होंडा देखे होंगे। अभी तो ईवी की स्कूटर देख रहे होंगे आप। पहले बाजाज स्कूटर हमारे घर में रहती थी तो कम से कम 30 साल रहती थी। अभी तो उसी मूल्य की मोबाइल फोन साल में 3 बार बदल जाती है अपने हाथ से। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन इतने बढ़ चुकी है। First of all, I would like to congratulate the students of the 6th batch of MBA who are graduating today at this August convocation ceremony. I would also like to congratulate their parents, friends and relatives for supporting and encouraging them to do the best always. I appreciate the faculty members IIM Jammu for their guidance in nurturing this batch of students. I want to congratulate every person in your life who might have fueled your aspirations and ignited your dreams in this journey. I know building a dream in someone's heart is bigger than building any physical structure in this world. You are entering into time and the space of your life that will provide you with the small little moments to turn your ideas into a big reality, a change, a transformation that the society and the world is expecting from you. I would say you are graduating at a perfect time to create a better future, deeply rooted in our glorious past. A professor had once said that if you did not know history, you did not know anything. You were a leaf that did not know it was part of a tree. मित्रों, आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है, जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है, और IIM जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आपके
फाइनल ईयर के सिलेबस में एक पूरा मॉड्यूल आईटी सिस्टम एवं डेटा एनालिटिक्स पर केंद्रित है और इसलिए मैंने सोचा कि जिस तेज गति से आज परिवर्तन हो रहे हैं उसमें लीडर्स का रोल क्या होगा, किस प्रकार टेक्नोलॉजी टूल्स तथा ह्यूमन लीडरशिप का बेहतरीन कोलैबोरेशन राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकेगा, उस पर आपसे कुछ चर्चा करूं। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUIT से पढ़ करके निकला था तब टेक्नोलॉजी की आकाश गंगा में दूर दूर तक कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान नहीं था, लेकिन संभावना थी। और वह संभावना कैसे थी, इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए अथर्ववेद की एक बात आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। अथर्ववेद के प्रश्न उपनिषद के सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को जाने माने टीचर महर्षि पिप्पलाद से एक प्रश्न पूछने की अनुमति थी। महर्षि पिप्पलाद भी प्रोफेसर सहाय जैसे डिसिप्लिन थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स एक ही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कौशल्या के पुत्र अश्वला ने उनसे 6 सवाल पूछे और वह 6 सवाल ऐसे थे जो इंसान के कर्म, जीवन और उसके भविष्य के बारे में थे। महर्षि पिप्पलाद ने उस बच्चे को डांटा नहीं, अश्वला से हंसते हुए जरूर कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत जिज्ञासा है और तुमने अवसर का लाभ उठाकर 6 सवाल पूछ लिए। उसमें से 2 सवाल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पहला सवाल था, व्हेन इज द लाइफ बॉर्न? महर्षि पिप्पलाद ने जो उत्तर दिया, फ्रॉम द डिवाइन सेल्फ दिस लाइफ इज बॉर्न। अश्वला का दूसरा सवाल था, हाउ डज लाइफ कम इनटू दिस बॉडी? उस पर महर्षि पिप्पलाद ने कहा, थ्रू द पावर ऑफ माइंड इट कम्स इनटू द बॉडी। विद्यार्थी और टीचर के बीच संवाद का ये सारांश यह थी जिज्ञासा। ज्ञान और कर्म ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारी डेस्टिनी को निर्मित कर सकते हैं। भारत की नॉलेज सोसाइटी का इवोल्यूशन इन 3 तत्वों की नींव पर ही हुआ है और हमारी सामाजिक व्यवस्था ने हमेशा नॉलेज सोसाइटी के उस आयाम को प्रमोट करने का काम किया है जिसमें बेसिक आवश्यकता, समग्र विकास और एम्पावरमेंट एक सामूहिक लक्ष्य की तरह लिए जाते रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा प्राचीन या पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि जिज्ञासा पर केंद्रित था, जिसमें क्रिएटिव, सेल्फ लर्निंग और वैल्यूज को प्रोत्साहित किया जाता था। मित्रों, भारतवर्ष स्वर्णिम भारतवर्ष इसलिए नहीं था कि हम अन्य देशों से सभ्यता, संस्कार तथा समृद्धि में सैकड़ों वर्ष आगे थे, बल्कि भारतवर्ष स्वर्णिम भारत इसलिए भी था क्योंकि पूरा का पूरा समाज चेतना के चरम शिखर को छू रहा था। भारत हमेशा से बाहरी एवं आंतरिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता रहा है और इसलिए आज भी अध्यात्म की ऊर्जा तरंगों को ढूंढते ढूंढते दुनिया भर से लोग यहीं आते हैं। और मैं समझता हूं भारतवर्ष के उस बुद्ध क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का काम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हुआ है और संपूर्ण विश्व न सिर्फ बाहरी समृद्धि बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक खोज के खजाने के लिए भी आज भारत की ओर देख रहा है। प्रसन्नता की बात यह है कि आप ऐसे समय में अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज इकोनॉमी का खिताब पाने के लिए लालायित है। और मैं मानता हूं कि अब ये चंद कदम दूर है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे यही इस दिशा में हमें आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नौजवानों को न सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपहार दिया है बल्कि डिजिटल इंडिया का सशक्त प्लेटफॉर्म, इसके पावरफुल टूल्स भी दिए हैं ताकि ह्यूमन कैपेबिलिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेजोड़ मेल से हमारे नौजवान अपनी आकांक्षाओं, अपने संकल्पों और अपने सपनों को पूरा करके राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें। स्वयं प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से
बात में रुचि लेते हैं किस प्रकार नए इन्वेंशन से, एआई टूल्स से नागरिकों को ताकतवर बनाया जाए, इंपावर किया जाए। अभी आपने सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए जरूर पढ़ा होगा, 9 जून को प्रधानमंत्री जी ने ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन से मुलाकात की व्यक्तिगत रूप से, और उसके बाद जो ट्वीट किया उन्होंने, एआई का पोटेंशियल इंडिया के टेक इकोसिस्टम को मजबूत एवं व्यापक बना रहा है और हम उस हर एक कोलैबोरेशन का स्वागत करते हैं जो नागरिकों को इंपावर करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई गति दे रहा है। हम वास्तव में, मैं मानता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी का नेतृत्व देश को मिला है, जो आज न सिर्फ विश्व के सबसे सशक्त और सबसे प्रसिद्ध स्टेट्समैन हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि दुनिया के सबसे टेक सेवी लीडर भी हैं। और आज जो भारत जैसे विशाल देश को डिजिटल सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे होनहार नौजवानों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ताकि आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन संभावनाएं मौजूद हों। भविष्य में आप जैसे बिजनेस लीडर्स न सिर्फ अभी वर्तमान में मौजूद संभावनाओं में वैल्यू एडिशन करेंगे, बल्कि आपके द्वारा ऐसे ब्रांड, ऐसे संस्थान और सामाजिक आर्थिक विकास के नए टूल्स विकसित हो सकेंगे जो कस्टमर और कंपनीज के लिए नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करेगा। आप सभी को कोडेक कैमरा और निगेटिव फिल्म की कहानी जरूर याद होगी। डिजिटल फोटोग्राफी ने उसमें वैल्यू एडिशन नहीं किया, बल्कि एक नया डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल तैयार किया। अमेजॉन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो रिवॉल्यूशन किया, उसमें उन्होंने इस बात की भी गुंजाइश रखी कि कस्टमर को पड़ोस के किराना स्टोर की भी फीलिंग आए, और इसलिए आजकल यूएस में अमेजॉन गो किराना स्टोर शुरू हुए हैं, जिसमें बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहां कोई कैशियर नहीं है, कोई चौकीदार भी नहीं है, और आपने जो सामान खरीदा है उसका बिल आपके ईमेल पर आता है। इसी तर्ज पर केरल के एक बिजनेस लीडर ने फेसलेस, कैशलेस किराना स्टोर अभी शुरू किया है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वैलिडेटर एआई टूल्स के से सलाह ले सकते हैं कि यह बिजनेस क्लिक करेगा कि नहीं, आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, उसका लोगो क्या होगा, सब कुछ एआई टूल्स के सपोर्ट से आज संभव हो गया है। मैं ये उदाहरण आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप ऐसे समय में ग्रेजुएट हो रहे हैं जब बिग डेटा तथा डिजिटल ड्रिवन परिवर्तन आपके आइडियाज, आपकी जिज्ञासा, आपकी क्रिएटिविटी को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, और टेक्नोलॉजी टूल्स तथा ह्यूमन लीडरशिप का यह गठजोड़ राष्ट्र निर्माण को नई गति दे सकता है। आईआईएम जम्मू ने जिज्ञासा, ज्ञान और कर्म, जिन 3 तत्वों द्वारा आपकी नींव मजबूत की है, उससे आने वाले भविष्य में आपके द्वारा अनेक ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक तथा सोशल इम्पैक्ट अवश्य दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। फ्रेंड्स, I have another suggestion to make. For new ideas to turn into success, you need to have courage and intuition. You may fail many a times, but you need courage to get up again and do it right. Sometimes you will have to rely on your intuition, your inner conscience, rather than artificial intelligence to do the right thing. And I strongly believe that intuition and inner conscience will always be stronger than algorithms. Whether you are working in insurance, banking, healthcare, automobile, or space technology, human values powered by technological capabilities will transform the businesses in future. Technology alone will not make a change, but leading technological tools combined with human leadership will be the most powerful tool for prosperity and progress in the human history.
business leaders with new business models and latest available digital tools will redefine the socio-economic development. The business leaders will play a key role in transforming the traditional businesses with new operating model and augmenting human skills for the future. इसी बात को मैत्रेयी उपनिषद में बड़ी सहजता से कहा गया हमारे यहाँ, उत्तमा तत्व चिंतनैव मध्यम शास्त्र चिंतनम। तत्व का चिंतन सबसे उत्तम होता है क्योंकि वह हमारे भीतर चेतना को जन्म देता है जिससे कुछ नया इन्वेंट करने की क्षमता पैदा होती है, नए इनोवेशन पैदा हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में यानी 7 साल में, जैसा अब मेरे पहले भी जिक्र किया गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे हैं। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स and number of patents, you will find quantum leap in every sector, and young leaders like you will play a major role in the future to provide prosperity, peace and harmony to the society and the world. आज आप एक ऐसे संस्थान से निकलकर कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसने मैनेजमेंट एजुकेशन सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डॉक्टर मिलिंद कांबले, प्रोफेसर सहाय के लीडरशिप में IIM जम्मू ने अभी कुछ दिन पहले NIRF 2023 में मैनेजमेंट रैंकिंग में पूरे देश में जो गौरव हासिल किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से इन दोनों लोगों को और इनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चाहे सरकार या कॉरपोरेट के साथ नई साझेदारी करके अपना योगदान देना हो, नई पॉलिसीज पर काम करना हो या स्टूडेंट्स के 100% प्लेसमेंट की बात हो, IIM जम्मू ने सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की है। मुझे खुशी है कोलैबोरेटिव अप्रोच तथा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करके IIM जम्मू ने हायर लर्निंग के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को एक बार पुनः उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलते चलते एक आखिरी बात अपने युवा साथियों से जरूर कहना चाहूंगा। कई दशक पहले हॉलीवुड की एक मूवी आई थी, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। उस फिल्म में एक दृश्य है, सीन है, और उसी मूवी का हीरो किसी कैरेक्टर को एक किताब गिफ्ट कर रहा है और उसने पहले पेज पर साइन करने से पहले लिखा था, नो मैन इज ए फेल्योर हु हैज फ्रेंड्स। आपने यहाँ जो दोस्त बनाए हैं, भविष्य में आपकी चुनौतियों और आपकी सफलताओं में वो सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। तो समझिएगा कि ये सबसे बड़ी सफलता है। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक अनुरोध IIM के मैनेजमेंट से, डायरेक्टर साहब से और बोर्ड ऑफ गवर्नर से करूंगा। सभी विद्वान लोग हैं। एक समय था जब दुनिया की GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन 25% से ज्यादा था। किन्हीं परिस्थितियों के कारण आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आज दुनिया में हैं जो इस स्टेट की और इस कंट्री की, उस देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि IIM जैसी संस्थाएं, IIT जैसी संस्थाएं अब अपने हाथ में इस काम को भी लेना होगा, तभी जो पुराना गौरव हमारे देश का है उस गौरव को हम हासिल कर सकेंगे। नॉलेज इकोनॉमी की चर्चा बहुत दुनिया में हो रही। मैं समझता हूं कि अगर भारत सोने की चिड़िया था तो और किसी कारण से नहीं था। हमारे पास सोने की खदानें नहीं थी, हमारे पास ऐसे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने देश में नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिसर्च किया, बेहतरीन साधन बनाए। और एक इतिहास की घटना कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सिकंदर का नाम आप सब जानते हैं। सिकंदर जब यहाँ आए थे और यही सिंध नदी के तट पर मगध की सेना से उनका युद्ध होना था। युद्ध के पहले उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे और गुप्तचरों ने जाकर के सिकंदर को बताया कि साहब जो सेना खड़ी है मगध की, वो पूरी तैयारी से
हजारों हजार की संख्या में तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए लोग तत्पर हैं, घोड़ा और हाथी पर सवार हैं। सिकंदर के कदम पीछे मुड़ गए और जब वापस गए तो पोरस और सिकंदर की दोस्ती का जो राज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वहीं पोरस से उनकी मुलाकात हुई पुरराज से, और जानते हैं दोस्ती का कारण क्या है? हिंदुस्तान में जो स्टील बनता था, इग्नॉट स्टील, दुनिया में उतना बेहतरीन स्टील कोई देश नहीं बनाता था और उससे सबसे बेहतरीन तलवार बनती थी। पोरस ने वही स्टील सिकंदर को दिया और सिकंदर और पोरस दोस्त बने। मैं समझता हूं कि वो समय अब भारत का आने वाला है। उस दिशा में ऐसी संस्थाएं भारत को आगे बढ़ाएंगी। मैं इतनी ही बात कह के भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है, ऐसी धारणा है और ऐसी किंवदंती है और सच भी यही है। लेकिन अब आज मैं जब कई बार ये बात कह चुका हूं और आज भी दोहराना चाहता हूं कि जम्मू देश का अकेला शहर है जहां देश के सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं और इसका श्रेय निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी को जाता है। देश का अकेला शहर जम्मू है जहां IIM भी है, IIT भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और एम्स भी है। धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी कोई जम्मू कश्मीर का विषय है, अगर उनको कहा गया है तो मुझे लगता है कि बिना सोचे बिना देर किए उन्होंने जम्मू कश्मीर की मदद की है। मैं उनके प्रति अपनी ओर से और हमारे प्रशासन और जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।